Can we start the meeting? Yeah, While people just a very good morning to everyone. Today we have with us our guest, Dr. Neepa Choksi. She is a doctor transformed to a personal development coach and counselor. She uses tools of energy healing along with understanding of human psychology to decode the blocks in thought process, thus leading to accelerated growth and achievement of goals. She specializes in creating clear mindsets, unlocking from the past, and facilitate creation of an exciting future. Her goal is to ensure her clients experience into wellness in all areas of their lives and is well equipped to face any challenges and stay strong in any situations. Through her signature program, Mindset Matters, she helps clients accelerate the career graph. She helps individuals across age groups and teams to identify their core values and purpose and align it with their interests to facilitate a nourishing future. Equip individuals with tools of positivity and resilience to assist them unearth their potential towards a meaningful life. She firmly believes the growth of her clients decides her growth. With these words, we welcome you, Dr. Neepa. Thank you so much for giving me this opportunity. And it's great to see on a lovely Saturday morning. So many people are up here attending the session. So quickly, we'll jump start to the session now. We're already at 7 o'clock in 7 minutes. Thank you, Shivani, for the wonderful introduction that you've given me. So this topic of this is something we encounter on a day-to-day basis in our professional as well as personal lives. So just to open up the session, I'm just going to start with my presentation. Okay. Yeah, can everybody see my screen? Yes. Yes. Yeah. Yeah, so I'm going to begin this with a statement which is very close to me. Peace is not the absence of conflict, but the ability to cope with it. This is a statement made by the famous US President Ronald Reagan, 40th President of US. So we all understand that while multiple people deal together, live together on a daily basis, it's not possible for everyone to have the same thought process and be on the same page all the time. But what's important is how we manage these situations and how we choose to come out of these situations. And that's exactly my aim today, that conflict is something that cannot be avoided. But what we can do is what we can try and understand how better we cope with it, how to develop coping mechanisms which help us to lead our lives in a better format. So what is conflict? If I can quickly have it in the chat box, what is conflict from everybody's point of view? If I can quickly have some responses in the chat box, that momently you put the word conflict, what does it mean to you? Yeah, clash of interest, unstable mind. Yeah, jagada. In simple words, yes, it is jagada, misunderstanding between the two, absolutely. Difference of opinion, not agreeing on common points, absolutely. So it's exactly what conflict is. It's not that, it's the end of the world. It's basically not agreeing on common points, having a difference of opinion, having ideas which don't meet or see the same page, but then it's very possible to still survive and work together. Why should you resolve conflict? If anybody would want to share this, why is it important? Why do you think that conflicts now we know are going to happen, but what is the purpose behind resolving the conflict? Yes, to grow, absolutely, to get peace. Peaceful operations. Yes, the basic idea in resolving conflict. Why does it become so important for us in our day-to-day life to ensure
that we understand the art of taking care of ourselves, the art of resolving conflict, just to avoid negative consequences. Absolutely. So again, like everybody has just summed it up. It's basically to ensure that all parties are in agreement. We make the most of our association with each other and come to decisions, come to conclusions which are in the benefit of each other as well as greater good of the society. So in a nutshell, this is all that conflict means to us. Growth achieve, very good to build nourishing relationships. That's exactly in a nutshell. So why these are some of the reasons why we really, really need to avoid conflicts. But what happens when we fail to avoid conflicts? Why is it so important for us to avoid conflict? What is it that we tend to lose when we avoid conflict? So basically, क्या होता है when two people don't get along with each other? They have issues with each other. What happens is it goes beyond just a simple argument a lot of times. So basically, understanding the characteristics of conflicts and why we want to resolve conflict. Whenever there are conflicting situations, there are a lot of emotions, unhealthy emotions that start coming up between people. We start judging each other. There's a lot of anger, there's a lot of irritation, there's a lot of frustration sitting in here that why is my point not accepted? Why can't people just understand what I'm trying to say? And in the bargain of all these things, again, what happens is stakes are high. When we say stakes are high, what do we mean by stakes are high? हमारे जो भी relations होते हैं between with ourselves, with people around us at home, at a workplace, or wherever we are dealing with, the spill of those emotions comes there. अगर हमें गुस्सा, very often we have seen people, office, something has gone wrong in office, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, you come back home with the anger and you throw out that anger there. That leads to a disturbance of equations at home. So it's not that if I have had an unpleasant experience, an unpleasant emotion at one place, अगर कहीं एक जगह पे झगड़ा हो वहीं पे मैंने खत्म किया नहीं, we take it along with us everywhere we go. It's like a ripple effect. It moves around with us everywhere, and that exactly causes a lot of problems in our personal space. Opinions vary, we become very judgmental, we start branding people. अरे ये तो झगड़ालू है, अरे ये तो वैसा है, ये तो वैसा है, इसके साथ किसी को काम नहीं करना है. And then what happens sometimes at workplace, even at home, there are certain situations which we just have to maintain. We have to take them ahead in a healthier way. The outcome becomes unpleasant. We see a lot of equations falling apart at workplace in the sense if you don't get along with people, your work suffers, your productivity suffers, however good you may be at your personal end. At home, again, we know what happens. झगड़े होते हैं. Nobody likes to spend time with each other. And in the bargain, our own self-esteem comes down. We stop feeling good about ourselves. So the whole point is when we are not able to manage ourselves, the end result of it is we will not feel good about ourselves. That nobody likes me, nobody wants to be with me, nobody wants to work with me. And when these kind of things happen, clearly, off late, mostly during the lockdown, after that, what we have seen is this inability to cope with situations has led to a lot of mental health issues in people. So the bottom line is understanding that why we need to deal with conflicting situations, that they are going to be there wherever we go. Difference of opinion is going to be there, but it's very, very important for us to learn to develop an outlook, a mindset that helps us deal with these situations. And ऐसा नहीं है कि only one aspect of our life gets affected when we are in a zone of maybe fighting with people or not getting along with people. It affects all areas of life. Human we're like a whole institute within ourselves where we have different areas of ourselves, like how an institute will have different departments. We have different aspects of ourselves. We have a career, we have a family, we have a health, we have a wealth. And each of these areas in turn will get affected. It's not that one is spared and the other one is left out. A lot of people don't make career progress because they're not able to get along with work, they're not able to manage situations. That family, we've seen the rate at which relationships are falling apart, whether it is between a husband and a wife, or a parent and a child, or between siblings. In the last couple of years, it has only been growing. Health-wise, we all know the kind of stress that these situations bring into you immediately catapults and brings in massive health issues because a lot of cases of blood pressure, diabetes. If we go down to the root cause, it is inability to deal with certain stresses. And where do these stresses come from difference of opinions and not able to deal with it. Wealth is a very important aspect which people don't realize that it gets affected, when you are not in that frame of mind or zone of mind to think correctly. All said and done, we need our wealth in place because we need to live a life. We're living a material life in this world and we need to buy things for ourselves, for our family.
So wealth is required. Even if your health goes down, you need the wealth to come in to help you get your health back in place. So while all of these are interconnected, it is very important to understand कि अगर हम झगड़ा करते हैं, अगर हम कोप नहीं कर सकते situations, तो ऐसा नहीं है कि वो situation चला जाएगा, situation नहीं चला जाएगा, but a lot of it about us is what goes away in terms of our equations with at our workplace and family. So just to understand from you, has it ever been that any of you have experienced, any negative situation taking over your and affecting any part of your life? If you can just honestly put it on the chat box, whether you've experienced any part of your life being affected by conflict, yes, no, and which part of your life has been affected? Is it your career? Is it your family equations? Is it your health, wealth, or anything else that you can think of? No, nobody has ever been affected by conflict. That's great then. Okay, so we'll go ahead to the next part of this presentation. Next part of the session is to understand the conflict. क्यों होता है? Why does it happen? Now, for any kind of conflict to happen, there needs to be at least two people. Okay, so just for a basic, simple understanding, I'm going to put it as person A and person B. अभी suppose there is a person A, एक आदमी, एक इंसान है, and they have their own thought process. वो कैसे सोचते हैं, which is again decided by their, the way they have grown up, the kind of environment they have been raised in, the kind of experiences they have taken from the world. कि उनको दुनिया की क्या समझ है, कैसे है, how I am interpreting the world, how I am interpreting my experiences in the world. Now, those thoughts will always give rise to certain feelings. So if I'm like we all understand, if we're in a happy moment, we are feeling happy. If things are working our way, if we're meeting success anywhere we want, if the outcome is the way I want, then we are all feeling very happy about it. But again, if the outcome is not the way I want, then there are feelings of sadness, irritation sitting up there. और हमारे जो भी feelings होते हैं, they always and always affected in our behavior. So 99.9% of the times we are not able to control our feelings, and we tend to, if we are very, very happy, we are excited and we show that excitement. If you're very sad, upset, angry, हम वो भी दिखाते हैं, and people understand कि अरे अभी इससे दूर रहो. There is right now it's not the best time to go for it. So what happens when I'm behaving in a certain way? The person on the other side is actually developing a certain thought process based on my behavior. So if I'm very happy, if I'm excited, and I'm celebrating, people think, okay, there's something nice going on in this person's mind. The person is very happy. But if I'm lashing out at people, I'm just screaming, I'm throwing things around, again, the thought that comes to the other person is, "Arey, isse to bahut gussa aata hai." Now, it doesn't end with that thought. That person develops a certain feeling towards us. If that person has to come up to me for some work, suppose it's at your workplace, at your home, they will again be like, "Arey, iska to mood acha nahi hai. Let's avoid that person right now." And that again reflects in their behavior, which is a behavior where they are staying away from you. अभी ये cycle जो है वो चलते रहता है. Whereas, when I'm thinking in a certain way, I have certain feelings, I'm expressing that loud in my behavior. The other person is making sense of that behavior. And again, they are adjusting their actions according to my behavior. So this cycle that goes on needs to break somewhere. If it's a healthy cycle, it's great. But if it's an unhealthy cycle, unpleasant cycle, it needs to break somewhere. And how do we how do we choose to break this cycle? Oh, sorry, I think I missed these chats. Yeah, it's interesting people have put up. Yeah, it's nice to see how honestly people come up and say, yes, areas have been affected by. Yes, I will use Hindi. मैं हिंदी में भी जितना होता है try करूंगी बोलने का. And sound is not clear. Though the point is actually I am traveling और मैं यहाँ का internet is not the best. So this is the best place I have got for the internet. I'm going to try my level best to keep my pace of speaking slow and use more Hindi. So the session goes more clear. Yes, mental peace is affected many a times. Yes, when angry, everything goes for a toss. Yes, so it comes out. जो सबसे ज्यादा feeling बाहर आती है, जो सबको दिखती है in the form of a behavior is anger.
और ये एंगर इशू जो है ना, वो हम लोग जितना समझते हैं उतना सिंपल और इजी नहीं है। ये बहुत लोगों को है, और ये बहुत बहुत हेल्थ इश्यूज, और मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज इज बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर एंगर। क्योंकि अगर जब हम एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवेरिएबली हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायबिटीज के प्रॉब्लम्स आएंगे। मैक्सिमम हार्ट पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में आते हैं, जो जो मैंने मेरे लाइफ टाइम में देखे हैं, पीपल हु आर अनएबल टू कंट्रोल द स्ट्रेस। जो स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस कम्स आउट ऑफ इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर। अरे मैंने कहा और नहीं हुआ, इट इज ऑलवेज कमिंग डाउन टू दैट। सो कहीं ना कहीं वो द होल आइडिया कि मैं जो चाहता हूँ वो होना चाहिए, मैं जो चाहती हूँ वो होना चाहिए, अगर वो नहीं होता है, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू आवर हेल्थ। एक बार हमारी हेल्थ गिरना शुरू होती है, then it's very difficult for us to manage our work, manage our other relations. और ऑलरेडी हम वीक है, क्योंकि हम इंटरनली इमोशनली वीक है। हम हमें जो करना है हम नहीं कर सकते। वहां और कोई थोड़ा सा छोटा सा ट्रिगर आता है कि कहीं किसी ने आके कुछ बोल दिया, कहीं किसी ने आके कुछ और थोड़ा सा भी कर दिया, वो और बड़ा ब्लास्ट हो जाता है वहां पे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, someone said anger is harmful to utensil in which it is stored, then in which it is poured. Absolutely. क्योंकि अगर हमारा एंगर किसी पे अगर डालते हैं, तो वो इंसान का चॉइस है कि whether they want to get affected by our anger or no. बट हमने तो गुस्सा किया, तो हमारा तो उतना बीपी बढ़ा, हमारा हेल्थ बढ़ा, हमारे हार्ट पे उतना स्ट्रेस आया। सो एज मच एज हमको लगता है कि नहीं, आर्ग्यूमेंट्स होने नहीं चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स तो होने ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। दो अलग इंसान है तो उनका ओपिनियंस अलग होना ही है, उनकी सोच अलग होनी ही है। वो अलग सोच को हम कैसे अपनाएं, हम कैसे उसमें एडजस्ट हो जाए, सी दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। जब हम अडाप्टेबिलिटी बोलते हैं, तो हम अडाप्टेबिलिटी उससे बोलते हैं कि हम किसी और की अलग सोच में कैसे मैनेज करें अपने आप को। हमें जो काम करना है, हमें जो करना है, हम वही इन्वायरमेंट में रह के कैसे कर सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट टू अंडरस्टैंड। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट ये है, ये अगर हम इसको एक सिचुएशन में डाल दें, सपोज आप ऑफिस में हो, आप मैनेजर हो और आपका जूनियर है। अभी आप एज अ मैनेजर, आपको हमेशा क्या लगता है कि मेरी टीम या मेरा जूनियर इतना केपेबल नहीं है, इतना काबिल नहीं है कि ये काम अच्छे से कर सकते, जैसा मैं चाहता हूँ या जैसा होना चाहिए वैसे कर सकते। एंड दिस अ वेरी कॉमन थिंग कि एक बार हमारे हमारे पास अगर वो लीडरशिप पोजीशन आती है, तो हमें जो ट्रस्ट और फेथ होना चाहिए टीम पे, हमेशा हम नहीं बिल्ड कर सकते। जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है, इट्स बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस टू बिल्ड दैट ट्रस्ट एंड फेथ। और जब हम वो ट्रस्ट और फेथ नहीं दिखाते टीम पे, हम बार बार टीम के सिर पे जाके बैठते कि अरे ये ऐसे क्यों किया, ये वैसे क्यों है, ये वैसे नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। वी आर कॉन्स्टेंटली शेलिंग आउट इंस्ट्रक्शंस टू देम। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर डूइंग दैट? अगर कोई हमेशा हमारे सिर पे बैठ के हमें बोला बोला कर, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो, उसको वैसे करो, आपको कैसा लगेगा? हाउ वुड यू फील? सो सेम वे, अगर हम थोड़ा वहां पे खुल के सोचें कि हमें कैसा लगे कि कोई कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग पे ठोक रहा है, ठोक रहा है, ठोक रहा है, इसको ऐसे करो, वैसे करो, तो सामने टीम को क्या लगता है कि अरे हम तो वैसे ही, हमें जो करना है, हमारा कुछ दिमाग लगा के काम नहीं कर सकते, हमको जो जैसे बोला है वैसे ही करना है। So the team comes up with the idea कि ये this I don't like my senior. A lot of times we hear that कि I do not like my senior. They are very authoritative. They are very dominating. हम कुछ भी करें उनको हमेशा प्रॉब्लम ही दिखता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, हमारी टीम की जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है, कि वो लोग सोचना ही बंद कर देते हैं। वो लोग बोलते हैं वैसे भी हमें तो जो भी आइडियाज आते हैं हम तो यूज नहीं कर सकते, हमको सोचना ही नहीं है। आप हमें बोलो हमको क्या करना है, हम वही करेंगे। सो दे suppress their ideas, their whole they start doubting themselves कि आई एम नॉट इवन गुड इनफ, कि मैं ये नहीं कर सकती, और या मैं ये नहीं कर सकता, मेरा मैनेजर तो हमेशा इसमें प्रॉब्लम ही निकालेगा। तो क्या करेंगे वो लोग? या तो कुछ काम खुद से करेंगे नहीं, जहां पे जितना बोला उतना करके छोड़ देंगे, या फिर देयर विल बी पीपल हु विल बैकफायर एंड रिबेल द मैनेजर, सीनियर को कंप्लेन करेंगे। अब बहुत सारी टिप्स होती रहती है, वो वैसी टीम्स है, वैसी ऑफिस में। और अगर ये साइकिल पूरा चलते रहेगा, क्योंकि वो एक हेड को लगता है कि नहीं, मुझे ही छोटी से छोटी छोटी चीज देखनी है, आई कैन नॉट ट्रस्ट पीपल कि वो लोग काम नहीं है, तो
तो हम क्यों करें, हम क्यों इतनी मेहनत करें, हम क्यों ऐसा काम करें, हम तो छोड़ देंगे, जितना बोलेंगे उतना ही करके जाएंगे. सो व्हाट हैपेंस इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन? लॉस किसका होता है? कंपनी का लॉस होता है, काम का लॉस होता है, प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है, नई आइडियाज का लॉस होता है. नई आइडियाज तब भी आएगी जब भी हम में वो कैपेसिटी है कि हम लोगों को अलाउ करें कि अच्छा ये काम अगर आपको अलग तरीके से करना है, ठीक है आप करिए, लेकिन मुझे इतने टाइम तक ये काम अच्छे से कंप्लीट चाहिए. So are we in a zone where we can get over our insecurity, our distrust in our people, and allow them to function as well as we are getting our result on time and getting the expected desired result on time? अगर हम वो माइंडसेट एक बार कल्टिवेट कर देना, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टीम का जो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है वो बढ़ेगा, द रिलेशनशिप ग्रोस हेल्थियर एंड द प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली शूट्स अप फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. चुप रहकर कंट्रोल करता हूँ इसी सिचुएशन में, चुप रह के कंट्रोल नहीं करना है. नैगिंग इज वेरी डेंजरस इन बॉयज एंड गर्ल्स. चुप रह के कंट्रोल नहीं होता है, सिचुएशन को समझ के हमें सिचुएशन में अपने आप को ढालना पड़ता है. अगर हम चुप रहेंगे तो क्या होगा? व्हेन वी आर क्वाइट व्हाट हैपेंस? सी व्हाट लॉट ऑफ पीपल फील कि हमें इफ आई स्टे क्वाइट सिचुएशन मैनेज हो जाएगी. सिचुएशन मैनेज नहीं होती है शांत रहने से. शांत रहने से क्या होता है? हम अपने आप अपने अंदर अपना घड़ा भरते रहते हैं. We start filling up that anger or those unpleasant emotions within our system. वो एक दिन फूटना ही है. It is not possible कि हम हमेशा अपने अंदर घुटते रहे और फिर हम खुश भी रहे. ये पॉसिबल नहीं है. सो हमें अपने आप अंदर भर के नहीं रखना है. What we need to do is understand कि हम इसको कैसे एक्सप्रेस करें, हम इसको कैसे सबके सामने लेके आए कि लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके और जो भी हमारा काम हमें करना है वो हम अच्छे से कर सके. अभी ये तो हो गया ये एक एग्जाम्पल. अगर ऑफिस स्पेस पे, वर्क स्पेस पे ऐसा कंफ्लिक्ट आया तो क्या कैसे सिचुएशन दिखता है. सेम थिंग अगर हम फैमिली पे चले जाए, पेरेंट और बच्चे, अभी वी एवरीवेयर, या हमारे हमारे पेरेंट्स के साथ कन्फ्लिक्ट होते हैं, हमारे हमारे बच्चों के साथ होते हैं, ये तो होना ही है, झगड़े होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ फैमिलीज वेयर they don't talk to each other, the parent and the child will not talk to each other कि उनका बनता नहीं है एक दूसरे से ना. इट इज नॉट कि बनता नहीं है एक दूसरे से, द प्रॉब्लम इज हमने कोशिश नहीं की कि हमारा अच्छे से बने, मेल मिलाप रहे और हम लोग खुश रहे. ज्यादातर अपना इंडियन सेटअप में पेरेंट्स को क्या लगता है, अगर बच्चे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाए या बड़े होके जो पेरेंट्स को चाहिए वो नहीं कर रहे, वैसे काम नहीं कर रहे, तो उनको लगता है कि मेरा बच्चा इररिस्पॉन्सिबल है, वो बेदरकार है, उसको कुछ पढ़ी नहीं है, अपनी नहीं पढ़ी है, हमारी नहीं पढ़ी, हम बोल रहे हैं ऐसे करो लेकिन नहीं कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है. और उसका क्या होता है, हमारा हम अपने आप में, या हमें गुस्सा आता है, या हम उदास रहते हैं, या हम किसी से बात नहीं करते हैं. अगेन व्हाट हैपेंस विद दैट, दैट शोज इन आवर बिहेवियर. बच्चों को ज्यादातर हम क्या करते हैं, पनिश करते हैं. पनिश करते तो उसका प्रिविलेजेस ले लिया, उनको जो हम देते हैं वो ले लेते हैं. सी ऐसा नहीं है कि लॉट ऑफ फैमिली से नहीं, हम बैठ के हमने बात की, बच्चों से हमने समझाया लेकिन फिर भी नहीं मान रहे. बट व्हाट हैपेंस इज, क्यों नहीं मान रहे? ऐसा नहीं कि उनको सुनना नहीं है पेरेंट्स का या मानना नहीं है, बट देन देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग. वो मिसिंग लिंक हमें ढूंढनी है और वो लिंक से हमें कनेक्ट करके समझना है कि वो क्यों नहीं मान रहे. ऐसा क्या है, मे बी उनका थॉट प्रोसेस अलग है. हमने बच्चे को बोला नहीं तो अभी पढ़ाई कर, और मे बी वो बोल रहे कि नहीं मैं अभी पहले मेरा ये काम करूंगा लेकिन फिर मैं ये मेरी पढ़ाई करूंगा. सी द बॉटम लाइन इन एनी इक्वेशन इज टू सी कि जो एंड प्रोडक्ट है, जो एंड रिजल्ट है, एंड गोल है, वो अपने टाइम पे हो रहा है. अभी बच्चा क्या सोचेगा, माई पेरेंट्स डोंट थिंक गुड अबाउट मी, मेरे पेरेंट्स को मैं अच्छा नहीं लगता, उनको दूसरा का बच्चा अच्छा लगता है क्योंकि उनको लगता है वो बहुत सुनता है अपने पेरेंट्स की बात, हमेशा मेरे पेरेंट्स को मुझे कंट्रोल करना है. और बच्चे को एक चिड़चिड़ाहट हो जाती है अपने माँ बाप से, उन्हें उसको अच्छा नहीं लगता है माँ बाप के साथ. वो क्या करेगा, वो या घर से बाहर जाता रहेगा, दोस्तों के साथ रहेगा, कभी कभी रॉन्ग कंपनी में चले जाते हैं या घर छोड़ के भी जाते हैं. सो वी डोंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन. और ये पूरी जो साइकिल है चलती रहती है. मोमेंट तक वो बच्चा बाहर चला जाता है, पेरेंट इज इवन मोर एंग्री. देखो मैंने कहा ना, कितना बेदरकार है, समझता नहीं, उसको उसकी जवाबदारी समझ में नहीं आती है. और वो साइकिल वापस पूरी साइकिल चलती रहती है until we do not find a place to break it. And it's very important to find a place to break these kind of situations and interactions.
Yes, understanding positive intention behind every negative situation very important. Being empathetic. अंदर गुस्सा बढ़ते रहता है यार. So that's commonly what happens. See, ज्यादातर हमारे हेल्थ पे इश्यूज क्यों आते हैं? क्योंकि हमने अपने अंदर भर के रखा है. अगर हम अपने अंदर भर के नहीं रखेंगे, हम अच्छे से उसको एक्सप्रेस करेंगे बाहर, तो 99% ऑफ आवर हेल्थ इश्यूज आर गॉन. हम काफी बार बोलते हैं कि अरे ब्लड प्रेशर तो जेनेटिक है, हेरेडिटरी है. अरे डायबिटीज तो हेरेडिटरी है तो मुझे आना नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर वो हेरेडिटरी है तो आपको आने का चांस मे बी थोड़ा किसी और से ज्यादा है. लेकिन सबसे ज्यादा चांस कहाँ से आता है? हमारे स्वभाव से. हम जैसे सोचते हैं, हम जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. अगर हम बहुत नेगेटिव 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 सोचते हैं तो हमारा बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करता है. हमारा बॉडी भी नेगेटिवली रिएक्ट करता है. अगर नेगेटिवली बॉडी रिएक्ट करेगा तो हमें डिजीजेस आते हैं, हम बार बार बीमार होते हैं, हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा चलती रहती है. स्पेशली जिन लोगों को हमेशा हेल्थ का कोई ना कोई इश्यू चलते रहता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू गो बैक एंड चेक कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है. देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द वे वी थिंक एंड आवर हेल्थ. सो कभी भी अगर आपको लगता है कि आदमी बच्चा बहुत बीमार रहता है, बार बार उसको सर्दी खांसी हो रही है, बुखार आता है, कुछ भी छोटी मोटी बीमारी, लेकिन हमेशा कोई लोग आप देखेंगे हमेशा कोई ना कोई हेल्थ में ट्रैप रहते ही है. हर 15 दिन महीने में कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी उनको आएगी. हमेशा थिंक थ्रू अ डिफरेंट लेवल. किसी को बीमार होना अच्छा नहीं लगता है. हमारा अगर बॉडी हेल्थी नहीं है तो हमें खुद अंदर से अच्छा नहीं लगता है. बट वो कहाँ से बार बार आता है? या तो उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस उन्होंने दबा के रखे हैं विच नीड टू कम आउट, या फिर देयर इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग देम, लेकिन वो लोग किसी को बता नहीं रहे, बोल नहीं रहे. So it is like that कि you have to observe yourself, you have to watch your family, you have to watch your people around you, have to watch the general health. Our physical health is a very strong indicator of how we are in our mindset. अगर हम mentally healthy है तो हमारा body automatically healthy रहेगा. It is not कि mind and body are different. No, they both belong to us. And we are all a byproduct of how we think. I just come to the chat box. Anger and frustrations like fire. So if we keep it inside, it burns within us. Yes, if we keep it inside, it burns within us. अगर हम बाहर फेंकते तो बाहर की दुनिया, हमारी आजू बाजू की दुनिया भी जला देंगे. So bottom line is हमें उसको खत्म करना है. उसको खत्म कैसे करें? That we have to understand. How to instill positive thinking to the other person's motivation? Yes. So as we go ahead in the session, we will cover up all this as to how do we change the thought process to ensure that the environment remains positive and motivated. So coming to understand, see, most of us come from two basic ideas. हमें हमारी फिक्र है, हमें हमारे आजू बाजू वाले लोगों की भी फिक्र है. अभी उसका पैरामीटर आगे पीछे होता रहता है. कभी मेरी चिंता ज्यादा है, मुझे सिर्फ मेरी पड़ी है. कभी कोई कोई लोग आप देखेंगे उनको सिर्फ आजू बाजू वाले बाकी सब कैसे हैं, मेरे फैमिली में लोग कैसे हैं, मेरे ऑफिस में लोग ठीक है, उनको सिर्फ उनकी पड़ी है. सो बट अगेन अगर हमको उसको ग्राफ पे ले लें, ओके, सो देयर आर पीपल जिनको खुद की भी कोई परवाह नहीं रहती है. वेरी वेरी केयरलेस टुवर्ड्स देमसेल्व्स, दे आर वेरी केयरलेस टुवर्ड्स अदर्स. वो लोग क्या करेंगे? कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आई तो वो सिचुएशन से भाग जाएंगे. वो पूरी सिचुएशन को अवॉइड करते कि मुझे मुझे किसी की पड़ी नहीं है. आई डोंट केयर कोई क्या करता है. आई एम आउट ऑफ दिस सिचुएशन कंप्लीटली. Second, these are not healthy ways to deal with the situation, and people express this in the way they are doing. You will see खुद का फिजिकली ध्यान नहीं रख रहे, खुद का मेंटली ध्यान, खुद की मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते. किसी को कुछ बुरा लगा आजू बाजू, उसकी उनको पड़ी नहीं है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली सिचुएशन को अवॉइड ही कर रहे हैं. क्योंकि क्या मुझे डील करना नहीं आता है तो मैं इसको पूरा अवॉइड कर दूं. इफ यू लुक एट अ डिफरेंट स्पेक्ट्रम, नाउ देयर आर पीपल जो अपने लिए कम चिंता करते हैं लेकिन अपने आजू बाजू वाले लोगों के लिए उनके पास वो ज्यादा चिंता करते हैं. स्पेशली वी सी दिस हैपनिंग इन फैमिलीज वेयर द एल्डर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स अपनी परवाह नहीं करते लेकिन बच्चों की परवाह ज्यादा करते हैं. तो वो बच्चों को जो चाहिए ला के देते हैं. दे स्टार्ट एंड एडजस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द वे द किड्स वांट. See again, what happens is when I'm completely suppressing myself, and both of these I am suppressed. But जब हम सिचुएशन अवॉइड करते हैं, हम दूसरों को भी अवॉइड कर देते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं.
और जब हम अकोमोडेट करते हैं हम दूसरों की विशेस को ध्यान देते हैं, लेकिन हमें जो चाहिए हमारा खुद का ध्यान नहीं रखते. सेकंड, दीज आर नॉट वेरी हेल्थी बिहेवियर्स बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम अपना खुद का ध्यान पहले रखें. अभी अगेन कमिंग बैक टू अनदर डिफरेंट माइंडसेट, देयर आर सम हु ओनली केयर फॉर देम, जिनको हम बोलते हैं ये बड़ा सेल्फिश है, ये बड़ा सेल्फ सेंटर्ड है, दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं करते, सबको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे, तुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है. उनकी क्या सिचुएशन है, उनकी क्या पोजीशन है, वो कुछ उनको पड़ी नहीं रहती. हम लोग काफी बार बोलते हैं स्पेशली एट ऑफिसेस, ओ माय बॉस इज वेरी डोमिनेटिंग. कोई बच्चे बोलते हैं माय पेरेंट्स आर वेरी डोमिनेटिंग, उनको जो चाहिए मुझे वही करना है, मुझे जो चाहिए उनको पड़ी ही नहीं है. सो उसको हम बोलते हैं डोमिनेट. And the last is collaborate. Now, of all of these characteristics, the way we deal with conflicts, the most healthiest is collaborate. कोलैबोरेट क्यों? क्योंकि हम अपना भी ख्याल रखते हैं, हम आजू बाजू लोगों का भी ध्यान रखते हैं कि भी कंफर्टेबल रहे, वो भी कंफर्टेबल कैसे रहे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें मिलजुल के रहना है, हम सिर्फ मिलजुल के आगे बढ़ सकते हैं. अगर हम सिचुएशन को अवॉइड करेंगे, लोगों को अवॉइड करेंगे, हम आगे नहीं जा सकते. अगर हम अपने आप को भी अवॉइड करेंगे तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते. ना हम पर्सनल रिलेशन में आगे बढ़ सकते हैं, ना हम प्रोफेशनल रिलेशन में आगे बढ़ सकते हैं. हमने अगर डोमिनेट किया तो ये पूरा वन साइड हो गया. इट्स ऑल अबाउट मी मी मी. जो लोग बोलते हैं आई एम दिस आई एम दिस आई एम दिस आई एम दिस, व्हाटएवर आई से इज राइट, दैट फॉल्स अंडर डोमिनेशन. उनका आगे जाके कुछ नहीं होना है, बट दे हैव गोइंग टू सफर. सो बेस्ट वे इज टू कोलैबोरेट, कि थोड़ा दो कदम मैं चली, दो कदम आप चलो, and we come together on a common ground. So what happens is when two people of dominating natures come together, suppose the parent and the child, दोनों को सिर्फ अपनी पड़ी है और किसी की पड़ी नहीं है, all they will do is clash, कि हर एक को अपने तरह से ही करना है. So lot of times we see कि हमारी बनती नहीं, हमारे पेरेंट्स के साथ हम लोग जाके अलग रहते हैं. Sometimes that is required, पर बनती नहीं तो क्यों नहीं बनती? अगर आपकी माँ बाप के साथ नहीं बनती है तो उसका रीजन क्या है? Either they are dominating or you are not able to understand. So these kind of situations where there is domination, there is avoidance, and there is just not accommodation, यहाँ पे रिलेशन ज्यादा आगे नहीं चलते हैं, कहीं ना कहीं आके थम जाते हैं, अटक जाते हैं या फिर टूट जाते हैं. So best way is to understand that how do we need to collaborate with each other, और collaborate ऐसे अच्छे से करें कि मेरा भी ख्याल, मुझे जो चाहिए वो भी हो रहा है अच्छे से, आपको जो चाहिए वो भी हो रहा है, थोड़ा सैक्रिफाइस नहीं करो, थोड़ा सैक्रिफाइस. अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होती है? कभी भी कोई सिचुएशन अगर आए, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली, कि क्यों कोई जानबूझ के कभी किसी से झगड़ा नहीं करेगा. नोबडी वांट्स टू डू इट, नोबडी लाइक्स इट, क्योंकि झगड़ा करने के बाद इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन होने के बाद हमें खुद अंदर से अच्छा नहीं लगता. सो ऐसा नहीं कि जानबूझ के लोग करें, जानबूझ के कभी कोई एक सब कुछ नहीं करेगा. बट कभी कोई इवेंट आए, ऐसी सिचुएशन आए कि हमें समझ में नहीं आया हमने क्या किया, हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमारे हमारे जो थॉट्स है, फीलिंग्स की, आई एम इरिटेटेड, आई एम नॉट लाइकिंग दिस, तभी दैट इज द टाइम वी हैव टू मेक अ चॉइस, हमें क्या करना है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑपरेट फ्रॉम फियर, कि हमें डर है कि हमसे ये छूट जाएगा, मेरा कंट्रोल छूट जाएगा, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा. सो ऑल ऑफ दीज बिहेवियर्स दैट वी जस्ट सॉ, दे कम फ्रॉम फियर, क्योंकि हमें डर लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, मेरे पास कोई नहीं आएगा, मेरी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी. We get into this zone. Either we are dominating and trying to tell the other person constantly यही करना है, यही करना है, यही करना है, या हम पूरी सिचुएशन छोड़ देते हैं, क्या इस डर से कि वो चला जाएगा हम अपने आप को सप्रेस करते हैं और सिर्फ उनको उनके लिए सब कुछ करने की ट्राई करते हैं. सो हर एक सिचुएशन में whenever anything comes out of fear, उसका end product is not good. So this is a weak behavior. Why weak behavior? We'll just give me 2 minutes. We'll come back and look into it. Now consider the same incident happening again. And again we are stressed, we are worried, we are irritated कि ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, और क्यों होना चाहिए, why is this happening, मुझे गुस्सा आ रहा है. तभी अगर हम चूज करें कि नहीं भैया, ये मेरे लोग हैं, मुझे उनको ट्रस्ट करना है कि वो लोग जो भी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं. और हम क्या कर सकते हैं? We need to talk to people in a nice way. We have to develop the ability to talk in a positive manner. अगर उस हम किसी को बोले अरे तू काम चोर है, तो उसको गुस्सा ही आएगा. तो that's not how we say. Maybe they are lazy. I'm not saying no. But you cannot upfront go and tell them, अरे तू तो वैसा ही है, तू lazy आलसी है, तेरे से कुछ होने वाला नहीं है.
मोमेंट यू टेल पीपल दैट, अगर वो लोग कुछ करने वाले होते तो भी नहीं करेंगे. So the way we turn our dialogue to them, the way we talk to them becomes important. अरे बेटा ये important है, इसको जरा अभी ये टाइम तक करके दे देगा. एंड ऐसा नहीं कि once I tell people and they will do it, नहीं ऐसा शायद नहीं भी होगा, बट the ability to hold patience and trust कि नहीं, मुझे फेथ है कि ये मेरे लोग हैं, ये टीम मेरी टीम है, ये फैमिली मेरी फैमिली है, कि हमें एक दूसरे के लिए अच्छा करना ही है. सो दैट इज वेयर द स्ट्रेंथ लाइज. बट यस, इट कॉल्स फॉर पेशेंस, इट कॉल्स फॉर टॉलरेंस. एक बार में नहीं होगा, शायद एक बार हुआ तो नेक्स्ट 4 बार नहीं होगा, एक वापस फिफ्थ टाइम होगा. तो उतनी हमारे में पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम ट्रस्ट से ऑपरेट करते हैं, दैट इज द चॉइस वी आर मेकिंग, कि हमें डर से करना है काम या हमें अपने आप पे और अपने लोगों पे ट्रस्ट दिखाना है. अगर वो चॉइस हमने ठीक तरह से की, ऑटोमेटिकली यू बिकम स्ट्रॉन्गर इंटरनली, एंड व्हेन यू बिकम स्ट्रॉन्गर पीपल विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग. हम जनरली मिस्टेक कहाँ करते हैं हमारी चॉइस में. अगर मुझे गुस्सा आया, मैंने इमिडिएटली सामने वाले को कुछ बोल दिया. अगर इफ आई गो बैक ऑन दिस साइकिल, मुझे गुस्सा आया लेकिन मुझे चूज करना है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं. तो मैं, अगर मुझे गुस्सा वैसे एक्सप्रेस नहीं करना है, मुझे गुस्से को वेंट आउट वैसे अनहेल्दी फॉर्म में नहीं करना है, मुझे उसको ऐसे ढालना है कि सामने वाला मुझसे भाग नहीं जाए लेकिन मेरे पास रहे. सो दैट इज वी हैव टू शो फेथ इन देम कि बेटा मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो हो रहा है ये मुझे नहीं लग रहा है ठीक हो रहा है, इसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं. समटाइम्स allowing people to express themselves, allowing people to come up with ideas कि इसको हम और कैसे अच्छा कर सकते हैं, भी उनमें ट्रस्ट डालते हैं हम लोग. वो उनको अच्छा लगता है. अगर उनको अच्छा लगता है तो जब भी हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, व्हाट इज अ स्ट्रेंथनिंग बिहेवियर, यू आर गिविंग देम सिक्योरिटी कि नहीं भाई, आई कैन, इनको मुझ पे ट्रस्ट है और मुझे ये काम करना है. इसी ट्रस्ट एंड फेथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन ड्राइविंग अ रिलेशनशिप. अगर विश्वास टूट गया तो पूरी रिलेशनशिप बिखर जाएगी, एंड वी ऑल नो दैट. So whenever you trust people, it's always a win-win for both ways. See, trust हमेशा एक झटके में नहीं हमेशा डेवलप होता है, उसको विद टाइम और विद एफर्ट डेवलप करना पड़ता है. लेकिन वो ट्रस्ट को तोड़ना, इट जस्ट टेक्स अ मोमेंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड. कि इतने साल से, इट्स लाइक बिल्डिंग बनाई 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 बनने में इतने साल लगे, उसको तोड़ने में थोड़े दो एक दो दिन में टूट जाएगी बिल्डिंग. सो दैट्स द वे वी लुक एट ट्रस्ट. तो हम ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें. अगर ट्रस्ट है तो हमारी अपने आप से कंफ्लिक्ट नहीं होगी, हमारी किसी और से कंफ्लिक्ट नहीं होगी. हमारी सिचुएशन समझने की और सिचुएशन में ढलने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी. अगर लोगों को हम सेफ, उनको ये फीलिंग दे सकते कि नहीं भाई आप हमारे साथ सेफ हो, स्पेशली व्हेन यू सी द रिलेशन, जब भी बच्चा छोटा होता है, उनको उसको पेरेंट्स पे फेथ रहता है कि ये मेरे पेरेंट्स और इनके साथ में सेफ है. तो वो सेफ्टी इज व्हाट वी हैव टू गिव एवरीबॉडी. जहाँ वो सेफ्टी है वहां पे ट्रस्ट है, ट्रस्ट है, गुडविल है, गुडविल है, हम लोग साथ में है, वी आर इन इट टुगेदर, वी आर कोलैबोरेटिंग एंड वी आर टुगेदर. इट्स अ कंप्लीट विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी. ऑन द कॉन्ट्री, व्हेन वी ऑपरेट फ्रॉम फियर, अरे इसने ऐसा, ये अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा नाम खराब होगा, अरे ये तो ऐसा है, ये वैसा है. When you start working from those thought processes, what happens is there is tension. Moment we come into those, कभी कभी हमें नहीं महसूस होता कि हम किसी लोगों, कई कई लोगों के साथ आते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता, हमें ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेस फील होने लगता है, टेंशन फील होता है. हम कितने भी खुश होते हैं, हम एकदम से हम शांत हो जाते हैं. तो द पॉइंट इज वॉट एवर वी आर थिंकिंग ना, हम वो वाइब्स अपने आजू बाजू फैलाते हैं. और वो इम्पोर्टेंट है कि हम अगर अच्छा सोचें तो हम अच्छे वाइब्स फैलाएंगे. अगर हम स्ट्रेस और टेंशन में तो हम अपने आजू बाजू भी स्ट्रेस और टेंशन फैलाते हैं. अगर मुझे ट्रस्ट नहीं है, मेरे लोगों को मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, तो नोबडी इज गोइंग टू वर्क द वे आई वांट टू. अगर हमें किसी से काम करवाना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको हम पे ट्रस्ट हो. ट्रस्ट कैसे हो, जब हम उनको उनकी स्पेस देते हैं कि नहीं भाई तू जो कर रहा है तू भी ठीक कर रहा है, लेकिन लेट्स सी हाउ वी कैन मेक इट बेटर. अगर हम पावर स्ट्रगल्स में घुसेंगे, डोमिनेशन की, नहीं मैं मेरा करूँ, मुझे ये ऐसा ही चाहिए, सामने वाला बोले नहीं लेकिन मुझे ऐसा ही चाहिए, इट इज नॉट गोइंग टू गो एनीवे. इट्स जनरली अ लूज लूज सिचुएशन फॉर एवरीवन. और व्हेन वी से विन लूज, हम ज्यादा ही, मैं अपने आप को सप्रेस करके उसको अकोमोडेट कर रही हूँ. तो विन लूज इज अ वेरी टेम्पररी सिचुएशन. तो सम टाइम मुझे लगता है कि थिंग्स आर मूविंग वेल, बट अल्टीमेटली इट्स अ लॉस लॉस सिचुएशन फॉर बोथ. और कोई भी प्रॉब्लम का हल
ऐसे नहीं निकलता है। प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स का हल कभी नहीं निकलेगा। चार्ट एंड प्रेजेंटेशन, थैंक यू। माँ निकम्मा बोलती है। पर माँ निकम्मा बोलती है तो सी यू कैन नॉट टेल योर मदर कि मैं निकम्मा नहीं हूँ, आप मुझे ऐसा मत बोलो, क्योंकि वो उनको वो शायद हैबिट हो गई है कि ये तो ऐसा ही है, ये कुछ करने वाला नहीं है। इट इज थ्रू, इट्स अ प्रोसेस। ये माइंडसेट को चेंज करना भी एक प्रोसेस है। और ये कभी होगा जब आप पेशेंस रखेंगे, आप अपने आप पे ट्रस्ट रखेंगे कि नहीं मैं निकम्मा नहीं हूँ, मैं मेरा काम अच्छे से कर रहा हूँ, एंड यू कीप फोकसिंग एंड डूइंग योर वर्क, ऑटोमेटिकली सामने वाले का मन में वो परिवर्तन आएगा। और इट विल टेक इट्स टाइम, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। यू कैन नॉट, अरे मैं देखो मैंने आज सब ठीक से किया और फिर भी ऐसे हुआ नहीं। वो आज एक बार से नहीं होना है, वो उसको टाइम लगता है होने को। हर चीज को, हर चेंज को आने में टाइम, वो टाइम हमें अपने आप को देना है। एंड दैट इज वे मोस्ट ऑफ अस व्हाट आई ने इतना टाइम से कोशिश मैंने किया लेकिन ऐसे हुआ वैसे। लेकिन वो कोशिश के लिए वो आप जो कोशिश कर रहे हो, अगर आप वो छोड़ दोगे तो आपको जो चाहिए वो आपको कभी नहीं मिलेगा। हम बच्चों को कैसे बोलते हैं मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मार्क्स आएंगे। अगर वो बच्चे ने बोला नहीं इस बार मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मैंने मेहनत करना छोड़ दिया, वुड यू बी ओके एज अ पेरेंट? क्योंकि यू अंडरस्टैंड कि आज मार्क्स नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूस मेहनत करता रहेगा तो कल उसके मार्क्स अच्छे आने ही है। सो दैट द सेम फेथ वी हैव टू हैव व्हेन वी आर डीलिंग विद आवर इमोशंस। कि ऐसा नहीं कि मैंने आज एक बार सब कर लिया ट्राई तो आज सब हो गया, नहीं। आई विल कीप ऑन ट्राइंग, मैं अपनी तरफ से मेरी कोशिश चालू रहेगी, वो सामने वाला क्या करता है वो उसके ऊपर है। सो दैट्स व्हाट वी से माय एटीट्यूड, मतलब मेरी सोच, जो मेरी सोच है वो मेरे बिहेवियर में, मेरे एक्शन में, मैं अपने आप को कैसे दुनिया को दिखाता हूँ उसमें दिखेगा। दुनिया क्या करेगी, दुनिया में दूसरे लोगों का, उनका खुद का सोच रहता है, उनका खुद का बिहेवियर रहता है। और जस्ट टू अंडरस्टैंड कि पूरी जो एनवायरमेंट है, हम अकेले नहीं रहते। मैंने से सोशल एनिमल, हम अकेले नहीं रहते, वी आर लिविंग विद पीपल इन द कंपनी ऑफ डिफरेंट पीपल। तो हमारी जो सोच है हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है, किसी और की जो सोच है वो उनकी बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। सो अगर हमारी सोच, अगर मैं खुश हूँ और मेरे एक्शन वैसे कि मैं खुश हूँ और सबको दिखता है, मैं दुखी हूँ और वो सबको दिखता है, तो मेरा अंदर से दुख है वो मेरे बिहेवियर में आ रहा है। सिमिलरली हमें समझना कि सामने वाले का जो अंदर से दुख है वो भी उनके बिहेवियर में आता है। But just to understand this very carefully, understanding, see a city like Bombay, take any metro city, people travel to work, काफी टाइम हम ट्रैफिक में अटक जाते हैं और वो बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है क्योंकि ट्रैफिक में हम अटकते हैं। वही फ्रस्ट्रेशन के साथ हम गए ऑफिस में, जैसे मैंने ऑफिस में पैर रखा किसी ने आके मुझसे कोई सवाल पूछ दिया, वो पूछते वो पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया उनके ऊपर, बिना कोई रीजन, बिना कोई उनका फॉल्ट, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो फ्रस्ट्रेशन मैंने कैरी किया हुआ था मेरे साथ। और फिर वो मैंने उनपे जाके पूरा घड़ा मेरा फोड़ दिया। सेम थिंग समटाइम्स हमारा ऑफिस में दिन अच्छा नहीं गया है, वही गुस्सा लेके बॉस ने बोल दिया, किसी और ने बोल दिया, मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया, वही गुस्सा मुझसे कुछ पूछ दिया, क्या किया मैंने, पूरा गुस्सा उन पे निकाल दिया कि अरे समझ में नहीं आता ये वो दिस दैट। इससे क्या होता है कि मैंने तो गुस्सा निकाल दिया लेकिन सामने वाले को जो है मेरी इंप्रेशन खराब हो गई, नेगेटिव हो गई, कि ऐसा क्या, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझ पे गुस्सा निकला। द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम कुछ और था और मैंने उसको निकाला किसी और पे, कोई और जगह पे। प्रॉब्लम इसमें क्या था कि मुझे जो सिचुएशन मैनेज करनी थी मुझसे मैनेज नहीं हुई, और मुझसे मैनेज नहीं हुई, मैंने किसी और पे गुस्सा निकाला। अभी वो सामने वाला मेरे से चिढ़ के बैठा है, वो मेरे वो भी ना मेरा काम करेगा ना मेरे से बात करेगा, वो पूरी साइकिल चलती रहती है। वो साइकिल को तोड़ना है, वो साइकिल को हम कैसे तोड़े, हम अपने आप को कैसे चेंज करें कि अगर मुझे इरिटेशन है, मुझे फ्रस्ट्रेशन है, जाके किसी और पे नहीं निकालूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव टू डेवलप वेज कि मैं कैसे डील करूं सिचुएशन से। ऐसा नहीं कि मैं सिचुएशन को चेंज कर दूं, अभी रास्ते पे ट्रैफिक है तो उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकती, मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ उसको मैं चेंज नहीं कर सकती, लेकिन वो डिसअप्रूवल को, वो गुस्से को मैं कैसे मैनेज करूं, वो है मेरी
strength. वो हमें सीखना है कि हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं. So if you look at Albert Einstein's statements, the problems of the world cannot be solved with the same type of thinking that created them. So we all know this. Problem है, उसका solution भी है. वो solution हमें ढूंढना है. और वो solution क्या है, कहाँ से ढूंढना है, वो या हम अपने आप ढूंढे या हम किसी की हेल्प ले ढूंढने के लिए, अगर मुझसे अकेले नहीं हो रहा है, अपने फैमिली मेंबर की हेल्प लीजिए. आप ऑफिस में आपको लगता है कि आपको हेल्प कर सकते हैं, आप उसकी हेल्प लीजिए, आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू स्टे स्टक इन दिस साइकिल ओनली यू गेट अफेक्टेड. आपकी हेल्थ खराब होनी, आपकी हेल्थ खराब होगी, आप काम ठीक से नहीं करेंगे, काम ठीक से नहीं करेंगे, आपकी वेल्थ अफेक्ट होगी, आपकी वेल्थ अफेक्ट होगी, आपका करियर अफेक्ट होगा, आपके पर्सनल रिलेशन अफेक्ट होंगे. सो ये पूरी एक साइकिल है और ये साइकिल को सिर्फ हम तोड़ सकते हैं, कोई और आके हमारे लिए नहीं तोड़ सकता. अगर हम बोले नहीं 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 उसने ऐसा किया इसलिए मैंने वैसा किया, उसने तो वैसा किया, उससे नहीं समझ में आया क्या करा तो उसने वैसा कर दिया, लेकिन क्या मुझे भी समझ में नहीं आया कि मुझे कैसे बिहेव करना ये सिचुएशन में. सो दैट इज द की. यस, दिस इज इनर चाइल्ड हीलिंग. I will look through books and I will put it up on the group. So there are lots of books to read, there are lots of articles to read on basic healing. See, healing में हम क्या करते हैं? What is healing? Basically, by healing our wounds. अगर मुझे चोट लगी है, वो चोट पे किसी ने प्रेस किया, दबाया, वो मुझे दर्द होना ही है. तो मुझे क्या करना है? मुझे मेरे घाव को हील करना है. मेरा घाव हील्ड है, मैं ऑटोमेटिकली, मुझे कोई वहां पे टच भी करेगा तो मुझे दुखेगा नहीं, मुझे पेन नहीं होगा. सो whenever we see people expressing themselves in certain, हमेशा झगड़े करते, वो झगड़ालू है, लेकिन वो झगड़ा क्यों करते? क्योंकि अंदर से वो दुखी है, अंदर से वो इंजर्ड है. और क्योंकि वो अंदर से इंजर्ड है, वो अपना दुख ऐसे जाहिर कर रहा है क्योंकि उसको नहीं मालूम और वो क्या करे, कैसे अपने को हील करे. Suffering is a choice, pain is inevitable. Absolutely. How we ensure that we heal our wounds first. अगर हम हेल्दी है तो हम किसी और को हेल्प कर सकते हैं. कभी भी हम प्लेन में जाते हैं और वो लोग हमें ऑक्सीजन मास्क का डेमो देते हैं, हमेशा एक स्टेटमेंट है कि पहले आप अपना ऑक्सीजन मास्क पहनिए, फिर आजू बाजू वाले को हेल्प कीजिए. क्योंकि इफ यू आर हेल्दी देन यू कैन सपोर्ट समबडी एल्स. अगर मेरे घाव भरे हुए हैं तो मैं किसी और को सपोर्ट कर सकता हूँ. अगर मेरे घाव भरे हुए ही नहीं है, मेरे घाव पे घाव आते जा रहे, मैं खुद ही पेन में इतना चिल्ला रहा हूँ, मैं कैसे किसी को हेल्प करूँ? या मैं ये सोच के रुकूं कि कोई और आएगा मेरे घाव पर, नहीं, ऐसा नहीं होता है. घाव आपके आपको ही भरना है. दैट इज नॉट अ चॉइस कि आई एम सिटिंग एंड वेटिंग, मैं और घाव आने दूं मेरे बॉडी पे, मैं और इन्फेक्ट करूँ अपने आप पे घाव. कोई तो आके हील करेगा, कोई आके हील करने वाला नहीं है. वो स्टेप आपको ही लेना है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाई डू कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन? कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स होती है. जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, आई एम जस्ट गिविंग एवरीबॉडी 2 मिनट. आप ये इतना सा स्टोरी पढ़ लीजिए. जस्ट अंडरस्टैंड इसको. आपको कोई कंक्लूजन नहीं निकालना है, आप सिर्फ इसको पढ़ लीजिए. A businessman had just turned off the lights in a store when someone appeared and demanded money. The cash register was open. The contents of the cash register was scooped up and the person sped away. A member of the police force was notified promptly. अभी इतना सा, they were just doing a little bit of a understanding on why and how even the smallest of things can give rise to a difference of opinion and conflict. अभी just based on this script, let's brainstorm some questions, okay? आपको सिर्फ चैट बॉक्स में हर एक सिचुएशन का आंसर डालना है, ट्रू, फॉल्स या क्वेश्चन मार्क, अगर आपको लगता है कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन कुछ बराबर नहीं है. अगर बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन आई आस्क यू, a man appeared after the owner had turned off the store lights. आपको क्या लगता है बेस्ड ऑन सिचुएशन, ये ट्रू है, फॉल्स है, या आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है इसके लिए? Thank you very much. Missing information, mind read. Anybody, you can keep writing. There is no right or wrong answer. There is going to be no judgments on this. So when I ask you a question based on this situation, a man appeared after the owner had turned off store lights. Now, if you ask me, I will say I don't know, because there's not enough information. Man आया, पता नहीं. After the owner had turned off the store lights, पता नहीं. Businessman turned off the store lights. Businessman owner है या नहीं, वो मुझे नहीं पता. So again, in this kind of situation, we have seen people fight.
नहीं नहीं वो ओनर ही बिजनेसमैन है, नहीं वो ओनर ने ही ऐसे किया, बट यहाँ पे कहीं पे क्लैरिटी है ही नहीं सिचुएशन में. सो इफ आई एम गोइंग टू फाइट ओवर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कहाँ से कुछ होगा. The man was a robber, कहीं पे robber का mention नहीं है. So many times when we run these kind of questions, people write yes 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 the man was a robber, क्योंकि लिखा है the contents was cooked up और वो आदमी भाग गया, लेकिन कहीं पे कौन सा आदमी वो बिजनेसमैन था, कितने आदमी थे स्टोर में, nothing is mentioned. And I'm bringing this up because I have run this in live sessions, and I have seen teams fighting and fighting over these answers. And if you come and see most of these questions, the man who opened the cash register was the owner. We don't know. The cash register was opened. वो एक statement है. किसने खोला? कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं है. There is no mention of it. Someone opened the cash register. Yes, किसी ने तो खोला है cash register. किसने खोला है? We don't know. While the cash register contained money, the story does not state how much money. कहीं पे नहीं लिखा है cash register के अंदर पैसा था. It is just written cash register was put up and the person sped away. So the idea behind, see, I've gone very fast through this because we're almost reaching 8 o'clock. The idea behind this is जब भी हम लोग लाइव सेशंस में ऐसे करते हैं स्टॉक ऐसे इवेंट्स करते हैं, ऐसे सिचुएशंस डालते हैं, वी हैव सीन टीम्स फाइट एंड फाइट. नहीं ये मेरा आंसर करेक्ट है, मेरा आंसर, बट a lot of times if you go back and see the information is maybe not enough, or everyone is interpreting it in their own way and each one's interpretation is correct. So especially when you're working at office or even working with your family at home, किसी के अंदर दिमाग में क्या चल रहा है वो हम हमेशा फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, विच इज वाई दिस इज हाउ दे आर बिहेविंग. वो वैसे बोल रहे या वैसे कर रहे, तो वो बिकम्स इम्पोर्टेंट. अगर हम वो नहीं कर सकते, हम इतना नहीं सोच सके, तो झगड़े होने ही है. रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू फॉल अपार्ट, योर हेल्थ इज गोइंग टू फॉल अपार्ट. आप काम में आगे नहीं जा सकते और ना ही आप पैसे बना सकते हो. हर चीज मैनेज करनी होगी. सी वी हैव सीन बिग बिग कंपनीज, we follow the stock markets, whoever is following stock markets, or you've seen big companies rise and fall. वो राइज होती है तभी उसको मैनेज करना रहता है, क्योंकि उसको मेंटेन करना रहता है पीक पे. वो फॉल होती है तभी भी उसको मैनेज करना रहता है, क्योंकि उसको ज्यादा फॉल नहीं होने देना चाहिए, उसको वापस ऊपर उठा के लाना है हमें. सो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. और हमेशा ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, इट्स नॉट पॉसिबल कि हमेशा हम अपने आप ही सब मैनेज कर सकते हैं. कभी कभी हमें हेल्प लेनी पड़ती है. And it is there's nothing wrong in seeking help. See, our Indian society is still not completely opened up to the idea of going out and seeking help. क्योंकि लगता है कि अरे अगर मैंने जाकर किसी और की मदद की तो उन्हें लगेगा कि मैं इनकेपेबल हूँ, मैं निकम्मा हूँ. बट ऐसा नहीं होता है. इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू टेक द स्टेप फॉर योरसेल्फ. आपको सीखना है कि मैं इसको कैसे मैनेज करूँ. हमें कभी कभी दो लोग झगड़े करते तो हमें एक मीडिएटर को, एक अनबायस मीडिएटर को लाना पड़ता है बीच में. लोग प्रॉब्लम्स लेके कोर्ट में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो जज जो है वो नॉन जजमेंटल है. वो अनबायस मीडिएटर है जो आपको हेल्प करेगा ये सिचुएशन सॉल्व करने में, सिचुएशन से निकलने में. सिमिलरली अगर आपको अपने पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आपको समझ में नहीं आता ये सिचुएशन कैसे मैनेज की जाए, आप जाके हेल्प लीजिए. आपको अगर जो लगता है आपको बेस्ट हेल्प कर सकते हो, या आपका फैमिली में कोई है, आपके वर्क में है कोई है, आपको प्रोफेशनली भी जाना पड़े, तो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू टेक द हेल्प एंड मूव ऑन रादर देन स्टे स्टक देयर विद द सेम प्रॉब्लम्स विद द सेम कंडीशंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप वही सिचुएशन में रहोगे, वही सोचेंगे, तो आप वहीं पे ही चिपके रहोगे, वहां से आगे जा ही नहीं सकते. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अगर बच्चा पढ़ता है और कम मार्क्स आते हैं, आप उसको क्या बोलेंगे, बेटा और नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ तो और बेटर मार्क्स आएंगे. तो जैसे हम बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं डूइंग ऑफ योर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को भी प्रोत्साहन दें, क्योंकि हमारे अंदर भी बच्चा बैठा ही है. हमारी एज बढ़ गई है, हमारी बॉडी ग्रो गई, लेकिन हमारे सबके अंदर एक बच्चा बैठा है. वो बच्चे को हमें हमेशा एनकरेज करते रहना चाहिए कि नहीं आज ऐसे हुआ है, टुमारो विल बी बेटर, बट आई हैव टू कीप ट्राइंग, आई हैव टू कीप माय पेशेंस, आई हैव टू बी परसिस्टेंट. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो हम नहीं कर सकते तो हम हर जगह से फेल होने ही वाले हैं. इसलिए इन टुडेज टाइम वी आर सीइंग सो मेनी केसेस ऑफ डिप्रेशन कमिंग. अच्छे अच्छे लोग
कोई लोग जाके हेल्प लेते, कोई हेल्प नहीं लेते, लेकिन द केसेस ऑफ डिप्रेशन आर राइजिंग लाइक क्रेजी। वन ऑफ द रीजंस दिस, आई कैन नॉट मैनेज, मैंने झगड़ा करके देख लिया, कुछ नहीं होगा, अभी मैं क्या करूँ, अपने आप को अपने अंदर दबा के बैठ गया। दोनों ही सिचुएशन में नुकसान सिर्फ मेरा, सामने वाला शायद सीख जाएगा कैसे आगे जाऊँ, वो आगे चला भी जाएगा, मैं यहीं पे अटक जाऊंगा और मैं यहीं दुख, अपने दुख में ढलाऊंगा। एंड नो बडी इज गोइंग टू कम आउट टू पुल यू आउट अनलेस एंड अंटिल यू चूज टू पुल योरसेल्फ आउट। कितना भी कोशिश हमारी फैमिली करे टू गेट यू आउट ऑफ द सिचुएशन, अंटिल यू डोंट चूज टू, यू कैनॉट कम सिचुएशन। जस्ट टू पुट इन अ नटशेल, हम लोग कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा कब होती है, जब हमारा थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है। Winston Churchill statements, courage is what takes to stand up and speak. Courage is also what takes to sit down and listen. उतनी patience हमें होनी चाहिए. And I am very, very grateful and thankful to all of you for being courageous enough to sitting down and listening to me on a Saturday morning. Thank you very much for your patience. Thank you very much. And it was lovely interacting with everybody. Dr. Neepa. So it was really required topic, and every one of us face these situations, Yeah. and how to cope up is definitely going to help each one of us. A lot of new insights we gained today. So the floor is open for any questions you have for Dr. Neepa. Yeah, anybody has any questions? Dr. Neepa, Yes. if people start doing the way you said and start managing themselves, they will not only be happy, but they will be very, very healthy. As you said also, people Yes, should it's try. about happy health. So, ultimately, it all comes from what I am choosing, what choice I am Yes, making. It is choice you are very difficult because, हम बचपन से आपका आवाज नहीं आ रहा है. करते रहते हैं। So एक बार हमें अपने आप को हिलाना पड़ता है जोर से। ये मुझे आवाज ब्रेक हुआ था नहीं अभी. करना है। Yes, it is Manish, temporary, but to make it permanent, it is choice of our mind. Absolutely. Yes. डिफरेंसेस आने ही है, उसको हम कैसे मैनेज करें वो हमारे। Yes, sorry, somebody else was talking. Dr. Neepa, I would like to ask one question. How Yeah. to tackle the situations where our mothers and mother-in-laws stick to this thing has to be done in certain way, and this is the way we are following, and this is the only way you have to do it. Yeah, so that's exactly when we were talking of how people communicate themselves. So this is a perfect example of communication of insecurity. अगर मेरी तरह से नहीं हुआ, if it's not happening my way, Actually, there you is a will lose the resistance grip, to I will lose change. the hold. So these are very tricky situations. It's not easy because everyone is coming from their thought process. So उनका mother-in-law का thought process एक होता है, बहू का thought process एक अलग होता है, तो उसको कैसे सामने लाना है. So see, a lot of these times somebody has to play mediator. क्योंकि एक स्टेप मैं चलूँ, एक स्टेप आप चलो, मैं एक स्टेप चली, आपने आधा स्टेप चला, मैंने वो आधा स्टेप अप्रिशिएट किया, लॉट ऑफ अप्रिशिएशन, कुछ भी अच्छा होता है उसको अप्रिशिएट करते हैं. you have to build trust in each other. ये इक्वेशंस क्या है, बेसिकली हमारी सोसाइटी ने ऐसे बना दिया, देयर इज नो ट्रस्ट इन दीज इक्वेशंस. एक बार वो ट्रस्ट फैक्टर स्ट्रॉन्ग आ जाए ना, फिर वो प्रॉब्लम्स विल रिमेन छोटे मोटे प्रॉब्लम्स और वो फिजल आउट हो जाएगी. बट बिल्डिंग द ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट. इट्स लाइक उसने मुझे क्रिटिसाइज किया, मैंने इन रिटर्न उसको क्रिटिसाइज किया, मैंने टिक फॉर टैट किया, वो टिक फॉर टैट में इट इज ओनली लॉस. Definitely. So appreciation is the key. Appreciation. For Anything, finding the smallest of finding the things small, create yeah, करो. हाँ. finding the Because सामने smallest वाले को अच्छा appreciation. लगना चाहिए कि अरे ये मेरे बारे में अच्छा सोचती है, ये मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं. Once that comes, and it does come from your heart. It doesn't have to be superficial. Appreciation should always come from your heart. It should not be बोलने के लिए बोल दिया. It should never be appreciation. Madam, there are some people who are really, really so negative and they are so aggressive. Yes. And so that time, if you see people from Israel, Jews, they were put in the jail by Germany. Correct. I don't remember the people's name. वो जेल से बाहर है. They came out of jail. They were put in the small, totally darkened this room, and they came out after 12 years. Then they were they have controlled their mind. So that is the power of mind.
Yes, it is totally the power. Great power. It is totally working. See, it नाम also, याद like नहीं आ I रहा मेरे को. said, sometimes what happens, people come to us for help and say, अरे आपने ऐसे बोला हमने किया लेकिन कुछ हुआ नहीं. But एक बार में it may not happen in one go. It may take, it calls for a lot of patience and continuous practice. See, मतलब मेरा बोला क्या, sometimes you have to bear also. you have to But bear. when you are bearing, it is a to be choice कि ये करना ही पड़ेगा मेरे को. See, वो bearing भी कभी है, you have to think and understand कि अगर मैं जेल में गई, जेल में अगर जो है उनके पास तो कोई चॉइस है ही नहीं. So what best I can make of this situation? It's always what best can I bring out in this situation for What best myself. है. अगर मैं Absolutely. अपने लिए अच्छा कर सकती तो मैं किसी और के लिए फिर अच्छा कर सकती, लेकिन मैं अपने लिए अगर अच्छा नहीं करती, मैं किसी के लिए अच्छा कर ही नहीं सकती. Absolutely. हाँ, विक्टर ऐसा होता क्या था, ये वो जो गुड साइकोलॉजी ऑल्सो, अभी नाम याद है, विक्टर ऐसा कुछ नाम था, यू कैन रिमेम्बर. Okay. मैं भूल गया नाम. Even that bloody small custody, for years and years, 12, 13 years. Okay. So any of you would like to Yeah, ask any question? questions, anything to ask? Any situation you are facing, you want a solution? So thank you, Dr. Neepa. So much for giving as- me this opportunity. Yeah, it was nice to have your presence with us today. Thank you. And I would like to announce that next week we are bringing our mentor Pawan sir. So he'll be taking a session on how to read 100 books in 2024, and that's his USP. So looking forward to this session next Saturday. Yeah, Manisha, go ahead. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Ma'am, I just have a Good morning. simple question. Like being a working professional and having home stuffs also, children also. Like everything is going on well. Like okay, it too happens that we are late in some task and we are managing anyhow. But things are fine. Nothing is wrong. पर एक स्ट्रेस जैसा फीलिंग रहता है माइंड में कि मतलब चीजें स्मूथ है बाहर बट अंदर से माइंड में रहता है कि किचन में वो एक सब्जी कटनी है या बेटा को अभी आना है तो ऑफिस में वो होना है तो वो एक नॉकिंग वाला फीलिंग रहता है उससे छुटकारा पाने का कुछ और अगर रेमेडी हो वैसे हिरानी सर इज डूइंग अ लॉट फॉर अस बट इफ यू हैव एनी टिप्स लाइक बीइंग अ वुमन मतलब थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड ऑन बट एक माइंड में एक कोने में वो एक नॉकिंग रहता है तो इज दैट करेक्ट और So, दैट शुड नॉट बी it देयर is very normal for us to think like that. It is not abnormal. But like you said, the things are going well. So कभी भी ऐसा आपको thought आए, remind yourself, no, things are going well. Yes, everything is going well. That's the, see, you cannot avoid thoughts from coming. वो thought आ रहा है, उसको आपको क्या करना है, धीरे-धीरे उसकी frequency कम करनी है. So every time you have that thought, you say, no, but, yes, everything is going well, everything is well. So you're changing the thought process there. So you're giving input, you have two thoughts. I know everything is going well, but yet it is bothering me. So after two, you're giving more importance to one thought. Moment ये thought है कि नहीं शायद वहां पे कुछ ठीक नहीं है, no, everything is going well. You start replacing one thought with the other slowly. You can try doing that, see if it works. Because it's, our mind is wandering. It likes to sit in multiple places at the same time. कभी यहाँ कूदा, कभी वहाँ कूदा, कभी कहीं और कूदा. So it is bound to happen. But then you're bringing it back again to what you feel is, you know things are going smooth. So you're bringing it back to that smoothness. So things are working well. Things are going smooth. Yeah, replacing thoughts. You change it with a thought that you want it. थैंक यू मैम Thank you so much for the feedback, everybody. Yeah, I think if everyone's done, we are good to. Can we close the session if everyone is done?
but correlate much with it because you face situations and not saying it has created. Yes, not saying it creates a lot of health issues. Learn how to express yourself well, very important. Thank you so much. Thank you very much, Shivani, for this opportunity, and have a great day and a great weekend, everybody. Thank you.